بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونان کے کسی ساحل پر ایک سوداگر اپنے عالیشان مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور سوداگر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک لڑکی ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کا نام بانو تھا، جو بہت چالاک اور خود غرض قسم کی لڑکی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سوداگر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ سمندر کی سیر کرنا چاہتی ہے۔ سوداگر نے اس کا کہنا منظور کر لیا۔ ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی ساحل کے ساتھ لگا دے۔ چنانچہ اسی وقت حکم پر عمل کیا گیا۔ دونوں میاں بیوی تیار ہو کر چل دیے۔ ان لوگوں کے ساتھ بالوں بھی چل دی۔ ساحل کے پاس کھڑے ہوئے 4 آدمیوں کو بانو نے ایک دوسری کشتی ساحل کی دوسری طرف لے جانے کے لیے روانہ کر دیا۔ دراصل وہ چاروں آدمی بانو کے رشتے دار تھے۔ ان کے چپو حرکت کرتے رہے۔ یہ سب ساحل سے بہت دور کھلے سمندر میں پہنچ گئے۔ اس وقت سوداگر کی بیوی بہت خوش تھی۔ اب ان کی کشتی سمندر میں تھی کہ اچانک بانو نے ان چاروں کو آنکھ سے اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے سوداگر اور اس کی بیوی کو سمندر میں گرا دیا۔ بانو یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد بانو نے ان سب آدمیوں کو کچھ روپے دیے اور خود اکیلی گھر واپس آ گئی۔ غرض 3 دن گزر گئے۔ اب وہ اکیلی اس عالیشان گھر میں رہتی اور عائش کرتی۔ دوسری طرف سوداگر کی بیوی نرگس کو اچانک ہوش آیا۔ امید نے اس کے جسم میں تھوڑی بہت طاقت پیدا کر دی اور وہ سمندر سے باہر آ گئی۔ نرگس کو بانو پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اٹھی اور اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کسی جزیرے میں تھی۔ ایک ماہی گیر ساحل کے پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ماہی گیر نے جو اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے ترس آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا سرسبز اور شاداب جزیرہ تھا۔ نرگس آہستہ آہستہ خشکی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا، اگر یہاں کے راجا کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی عورت اس جزیرے میں آئی ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ بہن ادھر کہاں جا رہی ہو؟ نرگس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، بھیا میں بہت دور سے آ رہی ہوں۔ ہاں یونان سے، لیکن یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اور تمہارا یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ نرگس بولی، بھیا سمندر کی سیر کو نکلے تھے۔ ہم میاں بیوی اور ہماری ملازمہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھے اور میرے شوہر کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ بچے یا غرق ہو گئے۔ انہی کے غم میں میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ قسم کھاتی ہوں جو اس دن سے میں نے کچھ کھایا پیا ہو، میں بھی ان کے غم میں گھل گھل کر مر جاؤں گی۔ ماہی گیر نے کہا، بہن ایسا مت کہو، خدا پر بھروسہ رکھو، ممکن ہے وہ بچ گئے ہوں اور وہ تمہاری تلاش میں اس جزیرے پر ہی آ جائے۔ مرنے سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، مگر میرے لیے یہ بالکل پردیس ہے۔ کون کس کی مدد کرتا ہے، نہ جانے مجھے یہاں رہنے بھی دیا جائے گا یا نہیں۔ تم کفر کیوں کرتی ہو؟ آج سے تم میری بہن ہو۔ میں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ تم یہاں اس پہاڑی کے پیچھے چھپ جاؤ، میں تم کو رات ہونے پر گھر لے جاؤں گا۔ ابھی کیوں نہیں بھیا؟ نرگس نے پوچھا۔ اس جزیرے کا راجا بہت ظالم ہے۔ وہ کسی دوسرے ملک کے باشندے کو اس جزیرے میں داخل نہیں ہونے دیتا، اور اگر کوئی زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو راجا اسے قتل کروا دیتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا، لیکن بھیا میں فاقوں کی وجہ سے لاغر ہوں، اور اس وقت اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ چنانچہ ماہی گیر چلا گیا اور نرگس اسی جگہ پر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ماہی گیر کھانا لے کر آیا۔ گرم گرم کھانا دیکھ کر نرگس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس طرح اس روز نرگس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور یوں رات ہونے پر سوداگر کی بیوی نرگس ماہی گیر کے گھر آ کر رہنے لگی۔ ماہی گیر کی بیوی ایک نیک اور رحم دل عورت تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ ماہی گیر کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس طرح نرگس کے ساتھ مل کر وہ سب خوش رہنے لگے۔ دوسری طرف سوداگر کے سب جاننے والوں کو پریشانی ہوئی کہ سوداگر کہاں چلا گیا۔ آخر کچھ دن تو وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ کہیں گیا ہوا ہو، لیکن جب یہ بات ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تو سب اکٹھے ہو کر سوداگر کے گھر آ گئے۔ بانو نے کہا، وہ دونوں حج پر گئے ہیں اور اپنا سارا گھر بار میرے حوالے کر گئے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گئے۔ بانو نے ان لوگوں کی ایسی خاطر مدارت کی کہ وہ اس کی چال بازی میں آ گئے اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو چل دیے۔ بانو نے سکھ کا سانس لیا اور وہ پھر سوچ میں گم ہو گئی اور باروب طریقے سے چلتی ہوئی اپنی آرام گاہ میں آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر آدھی رات گزر گئی۔ باہر خوفناک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ آخر وہ تھک ہار کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی
कि कमरा खौफनाक कहकों से गूंज उठा। बानो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो खासी घबराई हुई थी। खौफ के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने आंखें फाड़कर अंधेरे में देखा, लेकिन कमरे में उसके सिवा कोई दूसरा था ही नहीं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है बानो, गुस्से में भरी हुई आवाज आई। तुम कौन हो? वो डर के मारे थर थर कांपती हुई बोली। मैं कौन हूँ? एक बार फिर कह ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। मैं तुम्हारा मालिक हूँ सौदागर। नहीं नहीं, वो मर चुका है, बानो ने घबराते हुए जवाब दिया। तुम कभी सुकून का सांस न ले पाओगी बानो, तुम नमक हराम हो। मैं मरकर भी जिंदा हूँ। मैं मरा ही कब था, मेरी रूह आज भी जिंदा है। मैं तुमको सुकून का सांस न लेने दूंगा। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर हर तरफ खामोशी छा गई और बानो को डर के मारे यूं जागते जागते सुबह हो गई। दूसरे दिनों की तरह आज बानो ने किसी मुलाजिम को भी न डांटा। सब मुलाजिम हैरान थे कि आज इसको क्या हो गया है, वरना वो सुबह उठकर बिला वजह मुलाजिमों को डांटा करती थी। लेकिन आज वो खासी दर्द हो रही थी। उसे देखकर यही महसूस होता था जैसे बरसों की बीमार हो। उस वक्त बानो की यह हालत थी कि मुलाजिमा चाय लेकर गई तो उसने बड़ी खामोशी के साथ पकड़ ली। सब मुलाजिम हैरत ज़दा थे और वो बानो तो रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। आज की रात नहीं, अब सौदागर की रूह हर रोज रात को आया करेगी। नरगिस को उन लोगों के साथ रहते काफी अरसा हो गया। माहिगीर उसे बिल्कुल अपनी सगी बहनों की तरह चाहता और उसकी बीवी भी। माहिगीर रोज सुबह को समंदर पर चला जाता, वहां से मछलियां पकड़ता, उसे फरोख्त करता और यूं उनका गुजारा हो रहा था। बहुत कम लोग ही जानते थे नरगिस के बारे में, वो कम ही बाहर जाती। एक दिन का जिक्र है कि माहिगीर का एक मोहल्लेदार से झगड़ा हो गया और यूं उस आदमी ने जाकर राजा को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर राजा बहुत खपा हुआ और माहिगीर को तलब कर लिया। नरगिस खुद बहुत परेशान थी कि अब उसकी वजह से एक गरीब माहिगीर की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। बहन, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नरगिस रोते हुए बोली, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। चुप करो नरगिस बहन, मेरे लिए दुआ करना तुम दोनों, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो राजा के महल चला गया। रास्ते में सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे जैसे उसने किसी मजबूर की मदद करके कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। सब बड़ी नफरत से उसकी तरफ देख रहे थे। जब वो महल पहुंचा तो राजा भी बहुत गुस्से में था। वो उसे देखकर गरजा, तुमको जब हमारे कानून के बारे में इल्म है तो तुमने क्यों कानून की खिलाफ वर्जी की? बोलो, जवाब दो। सरकार, अगर एक जुर्म करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी की सजा दूसरों को क्यों दी जाती है? हर इंसान बुरा नहीं होता। कभी गैर मुल्की बाशिंदे को पनाह देकर देखे, हर इंसान बुरा नहीं होता, उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। माहिगीर बड़े अदब से सर झुकाकर बोला, 2 दिन के अंदर अंदर ये जजीरा छोड़कर चले जाओ। राजा ने बात खत्म की और माहिगीर खामोशी के साथ महल से निकल आया। सारे रास्ते वो खामोश रहा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो बहुत अफसरदा लग रहा था। उसकी बीवी और नरगिस ने माहिगीर की यह हालत देखी तो नरगिस हैरान हुई, जबकि बीवी सारी बात समझ गई। वो खुद भी अफसरदा हो गई। जब ये खामोशी हाथ से बढ़ गई तो नरगिस से बर्दाश्त न हो सका। भाई जान, बात क्या है, मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं बहन, माहिगीर ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। आपको मेरी कसम भाईजान, अगर आप सारी बात सच सच में बताएं। बहन, ये तुमने क्या किया? माहिगीर ने कहा और नरगिस के मजबूर करने पर सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर नरगिस को बड़ा दुख हुआ। भैया, अगर कत्ल का हुक्म था तो राजा ने हमारे लिए क्यों अपना कानून तोड़ दिया? नरगिस ने पूछा। बहन, जजीरे वाले मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, राजा भी मुझे अच्छा समझता है, इसलिए उसने हमें कत्ल करने के बजाय ये हुक्म दिया है कि हम जजीरा छोड़कर चले जाएं। तुम सब जाने की तैयारी करो, जो जरूरत की चीजें हैं वो ले लो और बाकी सामान रहने दो। और यूं किसी को पता भी न चला। माहिगीर रातों रात न जाने कहाँ चला गया। सुबह जब जजीरे वालों को यह पता चला तो वो अफसरदा थे, क्या कर सकते थे, ये राजा का हुक्म था। और यूं जजीरे से माहिगीर चल दिया। अब उसके सामने कोई अपना घर न था। तीनों सोचों में खोए हुए थे। नरगिस बहुत शर्मिंदा सी हो रही थी। माहिगीर ने जो उसको शर्मिंदा देखा तो बोला, बहन क्यों फिक्र कर रही हो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, ऐसा होता ही रहता है। एक जुर्म करता है, सजा सबको भुगतनी पड़ती है। तुम क्यों फिक्र करते हो भैया? मैं ये सोच सोच कर शर्मिंदा हो रही हूँ कि ना मैं आपके यहाँ आती और न ये सब कुछ होता। मैं ही मनहूस हूँ। नरगिस रोते हुए कहने लगी, ना ना नरगिस बहन, कोई इंसान मनहूस नहीं होता, ये सब जहालत की बातें हैं। गत माहिगीर ने उसे खासी तसल्ली दी, तब जाकर वो ठीक हुई। माहिगीर को उस गांव में आए हुए 5 दिन हो गए थे। गांव वाले बहुत अच्छे साबित हुए थे। माहिगीर के गांव के बाहर एक बहुत बड़ा समंदर था। वो रोज वहां जाकर बहुत सी मछलियां पकड़कर गांव में फरोख्त कर देता और यूं उनकी रोजी चल पड़ी। उस दिन भी माहिगीर ने समंदर में जाल डाला और एक तरफ होकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने जो जाल बाहर निकाला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सी सुनहरी मछली थी।
माही गिर उस अजीब व गरीब मछली को देखकर बहुत हैरान हुआ और उसे पकड़कर अपने घर ले आया। नरगिस और उसकी बीवी ने भी जब ये मछली देखी तो वो भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। गांव वाले तो उसे देखकर बहुत हैरान हुए। गांव के सरदार ने माहीगीर से कहा, ये मछली वो बादशाह के पास ले जाए, उसे मछलियां पालने का बहुत शौक है। और यूं माहीगीर बीवी और बहन से रुखसत होकर शहर आ गया। ये मुल्क यूनान था। माहीगीर ने उस बड़े से शहर को हैरानगी से देखा कि जिंदगी में पहली बार उसने इतनी बड़ी इमारतें देखी थी। यूं वो पूछते पूछाते बादशाह के महल में आ गया। कौन हो तुम? बादशाह ने जो उसे घबराए हुए देखा तो पूछा। जी वो मैं बादशाह जो बहुत नरम मजाज और रहम दिल था। माहीगीर को घबराते देखकर नरम आवाज में बोला, मैं ही बादशाह सलामत हूँ। आओ अजनबी। बादशाह सलामत उसे साथ लेकर मेहमान खाने में आ गया। तब माहीगीर ने मछली बादशाह को दिखाई। इतनी खूबसूरत और सुनहरी मछली देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। तुमने ये मछली कहाँ से पाई है? सरकार, इसी मुल्क के पास मेरा छोटा सा गांव है। उस गांव के बाहर एक दरिया बहता है, उसमें ये मछली मुझे मिल गई। माहीगीर बोला, सुनो, ये मछली बहुत खूबसूरत और नायाब है। हमने आज तक ऐसी मछली अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम जिस कदर दौलत चाहो हमसे ले लो और ये मछली हमें दे दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बादशाह सलामत? मुझे दौलत की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने जितना दिया है खुदा का शुक्र है। मैं तो सिर्फ आपको ये तोहफा देने आया था। माहीगीर ने खलूस से कहा। उसकी ये बात सुनकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। माहीगीर, अगर तुमने ये मछली हमें तोहफे में दी है तो सुबह तक हमारा इंतजार करो, हम भी तुमको इस कदर नायाब तोहफा देंगे। तुम अब आराम करो। इतना कहकर बादशाह चला गया और माहीगीर सोच में पड़ गया कि बादशाह उसको क्या तोहफे में देगा। सोचते सोचते रात गुजर गई। दूसरा दिन आया। माहीगीर ने उठकर नमाज पढ़ी और तभी गुलाम ने आकर कहा, बादशाह सलामत आपको दरबार में बुला रहे हैं। गुलाम इस कदर इज्जत से बोला कि माहीगीर हैरान होता हुआ बादशाह के पास चल दिया। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपनी शाही कुर्सी पर विराजमान था। दरबार खचाखच लोगों से भरा हुआ था। तिल धरने को जगह न थी। माहीगीर भी खामोशी के साथ एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। बादशाह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर लोगों के सामने ले आया। मैं यही चाहता रहा हूं कि मुझे कोई नेक इंसान मिल जाए जो इस कुर्सी के काबिल हो। बादशाह ने शाही कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और अब खुदा का शुक्र है कि वो आदमी मिल गया है। कौन है, कौन है? दरबार के चारों तरफ बैठे हुए लोगों ने शोर मचाया। तुम लोग इस कदर बेकरार हो तो ये लो। बादशाह ने माहीगीर का हाथ पकड़कर सब लोगों के सामने कर दिया और माहीगीर बेहोश होते हुए बचा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। तुम इस मुल्क के बादशाह हो। इतना कहकर बादशाह ने अपने सर से ताज उतारकर माहीगीर के सर पर रख दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। ये सब क्या हो रहा है? माहीगीर ने पूछा। मुझे नहीं चाहिए ये ताजो तख्त और ना ही ये महल। मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। माहीगीर ने घबरा कर कहा। बादशाह ने ऐलान कर दिया और सब लोग जोर जोर से नया बादशाह सलामत जिंदाबाद। और माहीगीर सबके दरमियान खड़ा उन लोगों की तरफ देख रहा था। बादशाह ने खामोशी से उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया। बादशाह सलामत, ये सब क्या हो रहा है? माहीगीर ने कहा। अब तुम बादशाह हो, सुनो। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं हज को जाऊं। हज पर जाने की मेरी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। मुझे एक ऐसे नेक इंसान की तलाश थी जिसको दौलत की जरूरत न हो और वो अच्छी तरह हुकूमत भी कर सके, और वो शख्स तुम हो। और इसीलिए मैंने यह हुकूमत तुम्हारे हवाले करने का फैसला किया है, और ये फैसला बिल्कुल ठीक है। बादशाह ने माहीगीर को गले लगाते हुए कहा और हज को चला गया। माहीगीर ने अपनी बीवी और बहन नरगिस को भी महल में बुला लिया। वो सब देखकर बहुत हैरान हुए। तब माहीगीर ने सब हालात उन दोनों को सुना दिए और माहीगीर ने अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करनी शुरू कर दी। लोग उससे बहुत खुश थे। नरगिस को अपने घर की याद सताने लगी। आखिर उसने एक दिन माहीगीर को सब हालात बता दिए। माहीगीर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो वानों को गिरफ्तार करके ले आए और खुद उन लोगों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो सब लोग वापस आ गए, लेकिन उनके साथ बानो ना थी। नरगिस को बहुत गुस्सा आया। बानो नामी मुलजिमा साथ क्यों नहीं आई? सरकार, परसों उसका इंतकाल हो गया था। ये उसकी मुलाजमा को साथ ले आया हूँ। कमांडर ने बताया। नरगिस ने चौंक कर उस मोटी औरत को देखा। वो सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। बादशाह सलामत, बानो का परसों इंतकाल हो गया। वो पागल हो गई थी। रात को उठकर वो चीखती चिल्लाती। मुलाजमा ने बड़े अदब से सर झुका कर कहा, किसी बुजुर्ग ने कहा था कि इससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उसके दिल पर बोझ था। उसके ज़मीर ने उसे चैन से न रहने दिया था और खुद ज़मीर की मौत मर गई। मुलाजमा ने बताया। नरगिस ने माहीगीर की तरफ और माहीगीर ने नरगिस की तरफ देखा। हाँ नरगिस बहन, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। इंसान जुर्म करता है तो उसे दुनिया में ही खुदा सजा दे देता है। मुजरिम दुनिया में कितना ही सजा से क्यों न बचे, लेकिन खुदा की सजा से नहीं बच सकता। हाँ भाई, नरगिस ने जवाब दिया। आपने ठीक कहा, मुजरिम कभी सजा से नहीं बच सकता। और यूं नरगिस भी उन्हीं लोगों के साथ महल में रहने लगी। दोस्तों, इसीलिए
کسی سے برا سلوک مت کریں کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہر کسی سے اچھا سلوک کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔